Hello students, welcome back to online classes, class 3rd. So dear students, in previous video we completed our poem little by little. Okay, hope so you understood and also learned the poem we discussed. Okay, now in today's video we will discuss the new words and question answers of this poem. Yes. So first of all, we will discuss the new words of this poem. Okay, here first number word acorn. What is meant by acorn? We also discuss acorn means seed of oak. Oak tree का जो seed होता है उसे क्या कहा जाता है? Acorn कहा जाता है. Then second number mossy. Mossy means moist. Moist मतलब गीला. Okay. Third improving. Improving means getting better. अच्छा होना, बढ़ना. Improving. Hidden means out of sight. Hidden मतलब छुपा हुआ, हमारी नजर से वो दूर है, बाहर है, उसे hidden छुपा हुआ, out of sight. Then sip. Sip means sun. Sip मतलब जिसकी पानी पीना, एक हम घुट पीते, उस तरह से वो जो सीड है वो भी क्या करता था, पानी को सक करता था, पानी पीता था. उसके बाद नेक्स्ट डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स मूविंग डाउन. डाउनवर्ड इट्स सेल थ्रेड लाइक रूट. मतलब वो क्या करता था, वो जो सीड है अपने रूट्स बनाता और वो नीचे नीचे भेजता था. डाउनवर्ड इट्स सेल थ्रेड लाइक रूट. ओके, देन नेक्स्ट स्प्रैंग आउट मतलब निकल आना, केम आउट बाहर निकलना और वो साइज बढ़ना. ओके, स्प्रैंग आउट मीन्स केम आउट. टाइनी मीन्स यू नो, टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल. नेक्स्ट शूट. शूट मीन्स अ यंग ब्रांच. छोटी छोटी जो ब्रांचेस तैयार होने लगते हैं पेड़ के, इट्स कॉल्ड शूट, अ यंग ब्रांच. नेक्स्ट स्लेंडर मीन्स वेरी थिन और पतला. स्लेंडर मीन्स वेरी थिन. एंड लास्ट वर्ड इज माइटी. माइटी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बिग, लाइक माइटी ओक ट्री. ओके, वी डिस्कस एंड hope so you understood all the I think 11 words, the words and their meaning also. Okay, if you have any difficulty then ask me. अगर कुछ words के meaning समझ में नहीं आए, pronunciation समझ में नहीं आए, तो you can ask me, वो मुझे पूछ सकते हो. Now open your book on see on page number 24. Okay, here are some questions on page number 24. 24 पर जो questions है वो आज हम discuss करने वाले हैं. Okay, first number question. Name the tree that acorn grows into. कौन सी ट्री है जिसमें acorn जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं acorn के, वो ग्रो होते हैं. कौन सी ट्री है, उस ट्री का नाम क्या है, हमने पढ़ा था. The name of that tree is oak tree. Yes, the acorn grows into an oak tree. तो acorn कहाँ पर ग्रो होते हैं, कौन सी ट्री पर ग्रो होते हैं, उस ट्री का नाम क्या है. The name of that tree is an oak tree. Okay. Now second number question. What things does a seed need to grow? Okay, very important thing. If you wanted to plant any tree, any plant, अगर आपको plant लगाना है, उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, which thing we need to grow that plant, उस plant को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए. You know, first important thing is soil. सबसे important क्या होना चाहिए, होता है वहां पर soil, मिट्टी. Then water, then air. Okay, these are the some things. मतलब कुछ कुछ चीजें हैं वो आप उसको लिख सकते हैं, जैसे कि air, water, soil, then moisture. ये तो हमने देखा है moisture. But these three basic things we need to grow that plant. हमें ये तीन बेसिक चीजें हैं वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है. Which things? Air, water and soil. Okay, now third number question. How many describing words can you find in this poem? मतलब describing words. What is meant by describing word? That describing words in the poem, मतलब जो words describe कर रहे हैं, वो words कौन कौन से? Slowly, improving, deep, sip, tiny, slender, and mighty. These are the describing word you can find. यहाँ पर वो देख सकते हो describing word जो हमें describe कर रहे हैं. कौन कौन से words है वो? स्लोली डिस्क्राइब मतलब वो वर्ड जो है उसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि स्लोली, इंप्रूविंग. बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप अगर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप उसमें लिख सकते हो. और कौन कौन से? लिटिल, माइटी,
Okay, these are the words you can write. Here we just discuss slowly, improving, deep, seed, tiny, slender, mighty. These are the describing words we discussed. Now talk time. Next question है उसके आगे. Look at the two pictures. Find 4 things that are different about these trees and talk about them. Okay, here are 2 pictures on page number 24. यहाँ पर पेज नंबर 24 के ऊपर 2 ट्रीज के पिक्चर दिए गए एंड वन इज one tree giving all the things and what do you give me, but what we give to that tree. मतलब हम क्या करते हैं ट्रीज से बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन हम ट्रीज को क्या देते हैं वो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखना है. ओके, इन फर्स्ट नंबर पिक्चर आई गिव यू ऑल दिस. हमें ट्री से कौन कौन सी चीजें मिलती है वो देखना है. फर्स्ट इन पिक्चर फर्स्ट यू कैन सी द ट्री गिव्स अस मेडिसिन. सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनती है ट्री से. उसके बाद सेकेंड नंबर वी आर व्हाइल इन पिक्चर 2 वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट. मतलब वो दोनों एक ही पिक्चर एक ही बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो दो बॉक्स दिए गए पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25 के ऊपर. ओके, हियर फर्स्ट नंबर पिक्चर यू कैन राइट द first number picture, the tree gives us medicines. The trees gives us medicine. Then the stem and leaves of the tree then are smiling, whereas leaves of the tree in picture are sad and weeping. Okay, यहाँ पर क्या दिया गया है, दोनों भी पिक्चर क्या एक साथ दिया गया है, तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो. ओके, पहले पिक्चर के ट्री का जो पिक्चर है वहां पर 24 पेज पर आप लिख सकते हो. जैसे कि कुछ देख, द ट्रीज गिव्स अस, मन से लिख सकते हैं, द ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, ऑक्सीजन. द ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, द ट्रीज गिव्स अस फ्लावर्स, द ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन, ट्री गिव्स अस वेजिटेबल्स. ओके, द ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स. ओके, इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो. अगर आपको मन से कुछ आते हैं यू कैन राइट योर ओन in your own words also. आप खुद के मन से भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हो. ओके, उसके बाद जो सेकंड नंबर है, हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं. वी कट द ट्रीज फॉर आवर नीड्स. सेकंड नंबर पिक्चर में लिख सकते हो, हम क्या करते हैं ट्रीज को कट कर देते हैं. और क्यों कट करते हैं, हमारे नीड्स के लिए. जैसे कि हमें टेबल बनाना है, वी कट द ट्री. इफ यू मेक चेयर, टेबल, देन furnitures, then we cut the trees. Okay, then and we use the that tree parts and destroying the trees and we pollute our environment. ये कट कर ट्रीज को कट कर हम हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट कर रहे हैं, इसमें पोल्यूशन फैला रहे हैं. उसके बाद we force the birds and animals to leave the trees or give away the tree from the cutting trees. मतलब हम जो birds होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पर रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो अगर हम ट्रीज कट करेंगे तो वहां पर बर्ड्स रह पाएंगे क्या, तो वहां पर वो बर्ड्स नहीं रह सकते. तो वो चीजें हमने यहाँ पर 2 पिक्चर दिए गए उसमें से सीखिए कि ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देता है. क्या देता है, फ्रूट्स देता है, फ्लावर देता है, वेजिटेबल्स देता है, मेडिसिन देता है. हाँ, ओके. उसके बाद बर्ड्स को नेस्ट बनाने के लिए भी वो जगह देता है, वहां उसके नीचे हम सो भी सकते हैं, छाव में, शैडो में. इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वी कैन टेक फ्रॉम ट्रीज. बट व्हाट वी गिव टू ट्रीज, हम ट्रीज को क्या करते हैं, कुछ देते हैं क्या, नहीं, बट वी कट द ट्रीज. ओके, वी कट द ट्रीज. वी व्हाट वी फोर्स द एनिमल्स, बर्ड्स टू गेट अवे फ्रॉम दैट ट्री while cutting the tree. हम जो कट करते हैं ट्रीज को कट कर हम बर्ड्स को फोर्स करते हैं, यहां से निकल जाओ, वहां से बर्ड्स निकल जाएंगे. अगर ट्रीज ही कट करेंगे, ट्रीज कट होने से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उससे पोल्यूशन बढ़ जाएगा. ये बहुत सारी चीजें ट्रीज कट करने से होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज वर्ड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ट्रीज, राइट देम इनटू गिवन स्पेस. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वर्ड दिए गए आपको
और उसमें से आपको उससे सेंटेंस लिखना है, स्पेस दिया गया है वहां पर लिख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रीज क्या क्या दे, हमने फिर से एक बार देखते हैं कि ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन, food or shelter, medicines. Then picture 2, we cut the branches of trees for burning, that cause pollution by setting the industries, plug leaves for feeding domestic animals. We cut trees to make our houses. Okay, various things we do with both the trees in the picture 1 and 2. Okay, now question number 7 or next question. The describing word, we need to write the sentence from that word. उस sentence को देखकर हमें उससे क्या बनाना है, एक वर्ड को देखकर उससे एक सेंटेंस बनाना। ओके, स्टेम, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प्स इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। उसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस क्या है और उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का, वो ट्री का जो पार्ट है वो कहां पर होता है, उसका काम क्या होता है, वो भी हमें लिखना है। ओके, इट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। स्टेम का काम क्या होता है, स्टेम का काम होता है कि ट्री को ताकत देना, उसे खड़ा करने के लिए मदद कर। बार्क, इट इज ब्राउन कलर पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर खोड होता है, खोड के ऊपर जो बार्क होता है, बार्क का मतलब होता है क्या कह सकते हैं उसे, जो ब्राउन कलर का होता है। तो उसे वो ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है जो स्टेम के ऊपर होता है उसे बार्क कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है लीव्स। These are green in color and many number. They make food for the plant. Okay, leaves को पता है आपको, leaves मतलब पत्ते, और वो पत्ते क्या करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं। किसका फूड बनाने का काम करते हैं, उस पेड़ का फूड बनाने के लिए काम में आते हैं। Branches, these are the parts emerging from the stem on which the leaves grow. Birds make their nests and on them. Branches का मतलब क्या होता है, जो उसके पेड़ के पार्ट्स होते हैं, स्टेम के ऊपर आते हैं और उस पर लीव्स ग्रो होती है, उसे टहनी भी कहा जाता है। और उस टहनी पर क्या आते हैं, लीव्स आते हैं, और उस टहनी पर बर्ड्स अपने नेस्ट भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं वहां पे। ट्विग्स, दीज आर द 3 बिग ब्रांचेस। ओके, ट्विग्स मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, पतली ब्रांचेस होती है, और उसे ज्यादातर लोग किसके लिए यूज करते हैं, दे यूज फॉर देयर एनिमल्स। उनका खाना बनाना, एनिमल्स का खाना खिलाने के लिए मतलब वो डालते हैं। Okay, वो twigs. Roots. Okay, roots where roots grow under the soil or land. These are the thin like thread long parts under the earth which hold the plant in the soil. Okay, roots कहाँ पर होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं, दोरा जो होता है हमारा, धागा जो होता है उस कलर पे होते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं बाद में, जब जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़े हो सकते हैं, यहाँ से बहुत दूर तक वो जा सकते हैं, वो रूट्स आपको पता है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है, मैच द अपोजिट वर्ड्स। वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, माइटी वीक। माइटी मतलब स्ट्रांग और वीक मतलब जो स्ट्रांग नहीं, जो ताकत नहीं उसके पास, वो। उसके बाद स्लोली, अपोजिट वर्ड फास्ट, लिटिल, बिग। स्लेंडर मतलब पतला, पतले का अपोजिट फैट। माइटी वीक वो हो गए डे opposite night. Okay, these are the question answers, very simple question answers and new words. Hope so you understood whatever we discussed in today's video. Okay, downward upward is remain just कुछ डिफिकल्टी होगी इसके बारे में, अपोजिट वर्ड के बारे में, डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्लोली, फास्ट, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, डे, नाइट। ओके, कुछ भी डिफिकल्टी होगी किसी भी क्वेश्चन से, ओके, पेज नंबर 24 और 25 के ऊपर, देन यू कैन आस्क मी। पेज नंबर 24 और 25 के ऊपर जो लिखना है, राइट करने के लिए आप मन से ट्राई करो, खुद अपने सेंटेंसेस बनाओ। ओके, व्हाट ट्री कैन गिव्स अस एंड व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम दैट ट्री, व्हाट डू यू गिव मी। और ट्री को हम क्या देते हैं, कुछ नहीं देते, उससे ही कुछ चीजें लेते हैं और उन चीजों से पोल्यूशन बढ़ाते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी then ask me. So today we stop here and next video we will start our next lesson. So today we stop here. Thank you very much.